Ethan E. Coley, worldly arrived as one of us, born on 25th August 1954 at 1:45 a.m. His father, Sardar Pratap Singh Kohli, born December 1922, son of Shri Diwan Chand Kohli and mother Srimati Ram Kaur Kohli, born March 1927, became fortunate parents. He had inborn interest in poetry creation, which cultivated into reading a vast variety of books, literature covering business, politics, religion, and spirituality. He graduated from Delhi University and went into printing business successfully, and further adding finance trade brilliantly to his credentials. He got married on 22nd June 1980 to Srimati Pramjit Kaur Kohli, born August 1960. They were blessed with 2 daughters and a son. Harry was born on 26th March 1981 and was married on 20th August 2002. Younger daughter was born on 11th November 1987 and was married on 4th December 2011 after successfully completing her studies. The son was born on 23rd August 1991 and is pursuing engineering in the field of technology. He considers being governed by the nature's created laws. Retaining this view heartily and mentally, he listened, learned, utilized, experimented on self from sayings of sages and wise persons, both with ancient time-proven and modern thoughts. Thus, he has engrossed limitless worldly and spiritual knowledge to ever-increasing wisdom in his life. He believes present world never existed before arrival and will cease to exist for 1 second after departure from bodily form. So, staying in present form, he regularly, relentlessly assimilates advantages of nature's knowledge. Guidance from others should be just past training and not the destination, which should be self-determined and fixed, self-placed, realized and implemented. Self-efforts means almighty. Self-knowing is realizing his self-life. He is preaching this for everybody's enlightenment, including himself. Retaining this and implementing on oneself principle, he is trying to fulfill his and everybody's life journey. He believes in the equal role of nature and human in the journey of life. Self-discovery and realization is the Devar. Anand, Anand, Anand. आप सबका अभिनंदन। जैसा आज हर बार की तरह आज के विषय का भी आपको ज्ञान है और हर बार एक नया विषय दिया जाता है और उस विषय में जो जगत में उस आयाम के बारे में या तो बताया नहीं गया या बहुत कम बताया गया है, उस पर रोशनी डाली जाती है। और यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जो विषय दिया जाए उसके बारे में जितना साधारणता ज्ञान बाकी जगह से मिल रहा है उससे अछूता जो रह गया उस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ दीदेवार जीवन ज्योति में आने का जो मुख्य कारण ये आज का विषय जो है विवेक और अहंकार, उसको इतनी सजगता से सुनना है क्योंकि जब उसके बारे में बताया जाएगा तो मन के अंदर अनेकों प्रश्न उभरेंगे। तो जैसा हर बार कहा जाता है कि प्रश्नों को उभरने मत देना, सिर्फ इस जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान रखना, तो मालूम पड़ेगा कि जिस चीज़ को हम आज लेने वाले हैं वो हमारे जीवन के अंदर कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हमें नए नए विषयों का ज्ञान मिल रहा है और हमारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है,
आज के विषय से हमारे जीवन में अभी तक जितना बदलाव आया वो एकदम उससे डबल होता है। इसीलिए आज के विषय के ऊपर गंभीरता से सुनना। विषय है विवेक और अहंकार। मानव जगत के अंदर प्रकृति के नियम के अनुसार जो मानव ने समझा है कि हर चीज के दो विलोम हैं। आज शब्द विपरीत की जगह विलोम इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस्तेमाल नहीं प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जब शब्द को प्रयोग करेंगे तो उस शब्द के बारे में साधारणतः हमें स्वयं ही ज्ञान है। दिन का विलोम रात है, लाभ का विलोम हानि है, गोरे का विलोम काला है। इसी प्रकार जो विपरीत शब्द है, विपरीत को विलोम भी कहा। और विवेक को सकारात्मक लिया गया है मानव जगत के अंदर, अहंकार को नकारात्मक। ये विवेक का विलोम अहंकार है। प्रकृति नियम के अनुसार जो सकारात्मक और नकारात्मक होती है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पुरात्मक आचरण करके खिंचाव होता है। जिस प्रकार महिला और पुरुष का खिंचाव होता है, उसी प्रकार हम नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में खिंचाव होता है। पर कहीं कहीं ये प्रकृति का नियम उस जगह पे लागू नहीं होता। एक अणु मानव जगत में अध्ययन करके उसे प्राप्त हुआ, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, और दूसरा अणु प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में विपरीत दिशा के हैं, विलोम हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो प्रगति नियम के अनुसार एक दूसरे को खिंचाव में होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, उसके एक दूसरे का खिंचाव नहीं। सो मानव ने कुछ ऐसी क्रिया करी जिसको हम ज्ञान से जो समझ आई उसको विज्ञान कहा गया। जिस व्यक्ति विशेष ने कहा था उसे वैज्ञानिक कहने शुरू हो गए। उन्होंने कुछ ऐसी क्रिया से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को विलय कर दिया, जो विलोम थे उसका विलय कर दिया। विलय मतलब उनका योग। तो एक नई शक्ति प्राप्त हुई जिसको हाइड्रोजन कहा। उस हाइड्रोजन को परीक्षा जब ली मानव ने तो उसे लगा कि ये विनाश का कारण है। मगर जब मानव ने अध्ययन किया कि ये इतनी बड़ी शक्ति है तो हम इसको अपने विकास के अंदर क्यों ना लें। तो हम देखते हैं कि एक बार प्रयोग करने में जो हमारा विनाश कर रहा था, आज उसके बाद मानव जगत उसके विकास के ऊपर कितना अग्रसर है, कितना हम उसका लाभ उठाएं। अर्थात प्रकृति ने जो जो हमें शक्ति दी, उस शक्ति की पहचान से हम उसका उत्थान करें या पतन करें, ये उस शक्ति के प्रयोग पे मानव के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार मानव को सबसे प्रथम ज्ञान हुआ कि उसके अंदर 2 किडनी है, तो क्या जिस दिन मानव को ज्ञान हुआ उस दिन उस मानव के अंदर किडनी थी, या जब से मानव बना है उसका आगमन हुआ तब से किडनी थी? अर्थात प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे नियम थे जो मानव को ज्ञान में नहीं थे। तो जैसे जैसे मानव को प्रकृति के नियम का ज्ञान होता है उसके लिए लाभदायक है। तो उस दिन से मानव को मालूम पड़ने के बाद मानव अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान का कितना लाभ उठा रहा है, हम सब इससे समझ सकते हैं। और एक नियम है जब विलय का, तो जब 2 चीज विलय करती हैं तो उसमें एक तीसरी चीज निकलती है। जिस प्रकार महिला और पुरुष का संग होता है तो एक नई उत्पत्ति, एक नया जन्म, वैसा शरीर। मगर वो आपस में विलय नहीं करते, तो फिर उसके बाद पृथ्वी। तो विलय का जो सही अर्थ है, जिसको योग कहा जाता है, जिस प्रकार हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का एक हिस्सा
जब आपस में मिल जाते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म होता है और वो जल एक नया प्रतीक बनता है। तो विलय उसका है जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए और नई चीज आए। जिस प्रकार 2 और 5 का विलय कर दिया जाए तो 7 आता है, उस 7 का नया प्रतीक होता है, 2 और 5 का अस्तित्व खत्म होता है। उसी प्रकार हम विवेक के शक्ति और अहंकार की शक्ति को ये जानेंगे तो हमें उसकी पहचान से हमें विलय करने का जो विधि मालूम हो जाए तो एक नई शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति का ज्ञान हमें आज मिलेगा और शक्ति हम अपने जीवन के अंदर उसको कैसे उपयोग करके अपने उत्थान में ले जाएंगे, इस बात पे हमें विवेक शब्द को मानव जगत के अंदर चरित्र के नाम से जाना गया और सकारात्मक था। और चरित्र जो है कर्म और वाणी से बनता है और कर्म और वाणी जो है विचार के द्वारा पैदा होते हैं और विचार बुद्धि के द्वारा मानव के अंदर पैदा होते हैं। अर्थात विवेक को जन्म देने के लिए मानव को कुछ क्रियाएं करनी चाहिए। विवेक स्वयं जन्म नहीं कर सकता, मगर अहंकार के अंदर इतनी शक्ति है कि वो स्वयं जन्म लेता है। और जिसके अंदर स्वयं जन्म लेने की शक्ति है उसको दूसरा उसको खत्म नहीं कर सकता। इस पूरा जगत अहंकार को खत्म करने में लगा है, इस बात से अज्ञानतावश कि जो स्वयं को उजागर करता है, स्वयं का अस्तित्व बनाता है, उसको दूसरा कोई खत्म नहीं कर सकता। और मानव अपनी पूरी शक्ति उसको समाप्त करने के अंदर, उसको दमन करने के अंदर, उसको शमन करने में लगा देता है, जबकि उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो स्वयं पैदा होता है वो स्वयं भी खत्म कर सकता है, वो दूसरा खत्म नहीं कर सकता। जब हमें अहंकार की शक्तियों का ज्ञान अभी मिलेगा तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी शक्ति है जिसका हम अपने जीवन के अंदर सही उपयोग करते हैं। ये प्रकृति की मानव को इतनी अधिक और शक्तियाँ, इतनी और ऊर्जाएं देने से सबसे शक्तिशाली जो प्रचंड शक्ति है वो प्रकृति द्वारा मानव को अहंकार रूपी शक्ति दी गई है, मगर मानव को उसका ज्ञान न होने की वजह से वो उसका सही प्रयोग नहीं। अहंकार कब पैदा हो जाए ये मानव को नहीं। बाकी सभी शक्तियां जो मानव के शरीर के अंदर है उसके अंदर उसका एक अलग इंद्रिय है और एक अलग स्थान है। देखने का एक इंद्रिय है, उसका एक अलग स्थान है, ये भी शक्ति है। श्वास लेने की एक स्थान है और एक शक्ति है। सुनने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है। हर चीज की अपनी अपनी शक्ति होते हुए उसके अंदर एक अपनी लिमिटेशंस कह सकते हैं कि उसके अंदर है कि वो उसी काम कर सकती है और उसी इंद्रिय द्वारा किया जा सकता है, दूसरी इंद्रिय उस शक्ति का नहीं हुआ है। मगर मानव के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं, अहंकार कहीं से भी उत्पन्न अपने आप होगा। और जो इतना श्रेष्ठ फल रखता है कि पूरे शरीर की इंद्रियां उसको जन्म देने का सहयोग कर सकती हैं, वो कितना शक्तिशाली है। और इसके अंदर कितनी शक्ति है कि जहां से ये उत्पन्न होता है फिर उसी को शक्ति वापस देता है कई गुना। ये वो शक्ति है जिसको मानव शरीर की कोई भी इंद्रिय उसको उजागर करने में सहयोग देती है और ये फिर किसी भी इंद्रिय को कितनी भी शक्तिशाली बनाने में अपना बल देती है। ये इसकी सबसे अहम शक्ति है। और इसके गुण कितने हैं
कि जब ये स्वयं पैदा कर लेता है और जब ये पैदा होता है और ये कैसे निरंतर बढ़ता जाता है, इसको सहयोग देने के लिए, इस अपने तरफ खिंचाव करने की इतनी शक्ति है कि इसको सहयोग देने के लिए कई कारण हैं। धन है, सत्ता है, शारीरिक शक्ति है, रूप है, ज्ञान है। इसको बल देने वाले मानव के जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसको बल देती हैं। और जो इतना बलवान हो और मानव अगर उस शक्ति को अपने योग में ले आए तो उसका जीवन कहां से कहां पहुंचे। हम अपने जीवन काल के अंदर देखते हैं, हाथी वो कितना बलशाली है, कितना विशाल काया है। वो जंगल के अंदर घूमता है और वो शहर में आ जाए तो शहर का विनाश करने का काम करता है। मगर उस शक्ति को मानव ने अपने विवेक से उसको अपने अधीन कर लिया, तो वो शक्ति पूरी की पूरी मानव के सहयोग के लिए होगी, मानव के उपयोग के लिए। अगर हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें तो इसी शक्ति को कैसे उपयोग में करना है ये हमें ज्ञान है। हम देखते हैं कि एक दादा विवेक के बल के ऊपर एक पोते के साथ खेलता है, उसके साथ वो खेल खेलता है। ये विवेक है कि मैं उसको कुछ ज्ञान भी दूँ, उस साथ खेलूँ भी, और वो बढ़ रहा है तो मुझे प्यार और ममता मोह जितने भी शब्द बने हैं सारे उसको दें। पर वो बच्चा जब 2 गेम खेलने के बाद जीतने शुरू हो जाता है तो जो दादा है उच्चतम श्रेणी का, जिसके अंदर विवेक है, वो कब अहंकार उसमें जन्म ले लेता है कि वो उससे प्रतिस्पर्धा करना शुरू करता है। हम अपने जीवन काल में तो ये इतना गुण है अहंकार का कि कब उसके अंदर पैदा हो गया उसे मालूम नहीं पड़ता और कब उसे सहयोग देकर उसको विजय बनाने का कारण है। और इसका आहार कौन सा है? सबसे पहले इसका आहार है जो उसका प्रतिद्वंदी विवेक। ये विवेक को कब खा जाता है उसे मालूम नहीं पड़ता। और विवेक इतना कमजोर है कि वो अपने आप को नहीं बना सकता, और अहंकार इतना शक्तिशाली है कि अपने आप को कब जन्म दे दे, ये जहाँ जन्म लेता है वहाँ भी उसका ज्ञान नहीं होता। और जब ज्ञान होता है, जब ये बहुत बलशाली और प्रतिष्ठित होता है। इस अहंकार की शक्ति को अगर विवेक में विलय कर दिया जाए तो जो विलोम था वो एक नई शक्ति के सामने। विवेक मानव जगत के अंदर जिसको बहुत सकारात्मक और एक ऊंचा स्थान दिया गया, इसके गुण नाम की चीज इसमें बहुत कम है। इसमें विनाश के कारण बहुत हैं विवेक के। विवेक जब किसी के अंदर उजागर होता है तो उसमें भय सबसे पहले आता है, आगे बढ़ने की शक्ति रोक देता है, उसको उसी समय कार्य करने के लिए सोचने में मजबूर कर देता है। और कई बार विवेक इतना बलशाली हो जाता है कि व्यक्ति विशेष को वहीं रुक जाता है। तो जिसको हम आदर दे रहे हैं वो हमारे जीवन में कहाँ का रुकावट दे रहा है, और जिसका हम निरादर कर रहे हैं वो हमारे जीवन को कहाँ का ले जा सकता है, इसका ज्ञान जब होगा तो हम अपने जीवन में उस प्रचंड शक्ति का अपने जीवन काल के अंदर ही उपयोग कर वो पतन का जिसको माना है हमारे उत्थान का करना। कितना बड़ा गुण है अहंकार के अंदर कि जिसको खाने लगता है उसे मालूम ही नहीं कब पैदा हो जाए, कहाँ से पैदा हो जाए, किसी से सहयोग ले ले, फिर बदले में उसे इतना बलशाली कर देता है कि वो सारे के सारे उस
समय के ऊपर उस पर अपना अधिकार जमाना और कृत्रिम से कृत्रिम कार्य कर ले, उसका दायित्व नहीं ले पाता, उसका दायित्व दूसरे पे गिराने के अंदर इतना सक्षम है। और उससे कोई अच्छे से अच्छा सुकर्म कार्य हो जाए तो किसी को उसका श्रेय लेना नहीं। ये सिर्फ अहंकार के अंदर, जिसको हम गर्व, कमांडर्स को नाम के नाम से, जिसके अंदर अति अधिक गुण हैं, हमने उसको गुणों को नकारात्मक समझा क्योंकि हम उसका सही उपयोग नहीं करते। इसका सही उपयोग कब किया जाएगा? यहाँ पर बार बार एक बात कही जाती है, सजगता। जब जब कोई व्यक्ति विशेष सजग होगा, उसके अंदर अहंकार कब पैदा हो रहा है और कितना हो रहा है, उसको विवेक बता दे। जो आश्वास की क्रियाएं आपको बताई जाएगी, ये उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से ही जब हम इसका अभ्यास अधिक कर लेंगे तो हमें हमारे अंदर कब ये कहाँ पैदा हो गया है, इसका उसी वक्त अनुभव होगा। और उसको श्रेय देने वाला जो कार्य है, बल देने वाला कार्य है, वो विवेक के माध्यम से उसको रोक। और विवेक कभी स्वयं नहीं जागृत होता, विवेक को बुद्धि द्वारा ही जागृत होता है। और अहंकार जब आता है तो सबसे पहला प्रहारी बुद्धि होता है। और जिसको बल मिलना है उसने उसका द्वार बंद कर दिया, उसका द्वार खुला रहे, उसके लिए सिर्फ सजगता ही चाहिए। और सजग व्यक्ति ही अपने विवेक को हमेशा जाने रख सकता है। अहंकार कभी भी पैदा हो सकता है, विवेक को पैदा करना पड़ता है। विवेक पैदा होने के बाद अपने आप कम भी नहीं होता, मगर अहंकार स्वयं को समाप्त करने की शक्ति है। उसमें ज्यादा समय का आयु नहीं है, विवेक की आयु लंबी है। तो हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे विवेक में इतनी शक्ति हो कि अहंकार को अपने में विलय कर ले। जो विवेक की कमजोरी भेद, सबसे बड़ा भेद आता है उसके अंदर, वो अहंकार उसको ऊर्जा देगा तो वो बुद्धि के बल से उसको सही कार्य करेगा। सृष्टि के अंदर जो भी कार्य हुए हैं वो सृष्टि का है, मगर जगत के अंदर मानव ने जो जो कार्य करे हैं वो आध्यात्मिक हुए हैं, शारीरिक ज्ञान के रूप में हुए हैं, संसारिक ज्ञान के ऊपर हुए हैं। जिन्होंने करे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अहंकार शक्ति ने काम किया और विवेक ने उसे आगे बढ़ने को रोका। जो हो रहा है ठीक है यार, मैं कहाँ कर सकता हूँ, चल रहा है, ये विवेक है। और अहंकार कहता है, उसके अंदर बल देता है, तू कर सकता है, चल। ये अहंकार ही है जो उसे बल देता है। मगर जहाँ अहंकार अकेला हो जाता है वो जंगल का हाथी की तरह होता है। जहाँ अहंकार विलय हो जाता है विवेक के अंदर तो वो कार्यशील हो जाता है, मानव जगत के लिए होता है। जिस किसी ने भी कभी कोई वेद रचा है, जिस किसी ने भी कुछ किया है, वो अहंकार के बल पे किया। उस समय की जो प्रचलित भाषाएं थी, उस समय के जो प्रचलित मान्यताएं थे, उस समय की जो प्रचलित आस्थाएं थे, उस पर चलने वाले विवेकशील ही व्यक्ति थे। मगर उसके पृथक होकर जो बाद आके नई दिशा जगत को दे सके, उनके पीछे अहंकार नहीं कार्य। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जिसके अहंकार के पीछे विवेक चला है वो सकारात्मक कार्य हुआ, और जिसके पीछे विवेक खत्म हो गया, अहंकार खा गया विवेक को, उसके पीछे उसके पतन। बल शक्तिशाली किसी ने
किसी को मारने के लिए कहा, और मरा दूसरा भी है, पर किसी को बचाने के लिए। बचाने के लिए भी अहंकार जिसमें है, बल है अहंकार का, वही किसी को बचाने जा सकता है। जिसके अंदर अहंकार पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ विवेक है, वो उसने जीवन के अंदर बहुत सिंपलिसिटी, सादे रखने के, उसने कोई नया घटन कार्य नहीं। जब हमें इस बात का ज्ञान हुआ तो अहंकार और विवेक के जो विलोम है, उनके विलय होते ही एक नई शक्ति पैदा होती है, जो अग्नि शक्ति है। उसी व्यक्ति ने माउंटेन एवरेस्ट को अपने पांव के नीचे रख दिया, जिसके अंदर अहंकार रूपी बल पैदा हुआ। अर्थात मानव तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू पहाड़ को अपने पांव के नीचे रख सकता है, ये उसी व्यक्ति ने कर सका है जिसके अंदर अहंकार ऊपर बल है, जिसके अंदर ये दृढ़ता आई मैं कर सकता हूँ। ये दृढ़ता कौन देता है किसी चीज को? अहंकार। नए रास्ते की खोज किसने करी? किसी ने भी कोई नया करा है, चाहे उसने शस्त्र उठा के करा है, उसने वस्त्र उठाए हैं, उसने विज्ञान के रूप में जो कार्य करा है, मैंने कार्य शुरू कर लिया है, मैं इसमें कामयाब होऊंगा ही, चाहे उसने 100 प्रयोग करें, ये अहंकार का बल था, तो उसी दिशा में आके हरा नहीं, और उसने नया प्रयोग जगत कर देखे। हम अपने स्वयं से पूछें, क्या हमारे जीवन में ऐसी चीज है? तो हमें क्या करना है? इस शक्ति का सही उपयोग करना, और इस शक्ति का उपयोग का कारण सिर्फ विवेक को उजागर करने से एक सकारात्मक है। ये विवेक का काम क्या है? जब भी अहंकार उत्पन्न हो तो उसी समय उसी को ये श्रेय देने के बजाय उसे ये कह लिया जाए, अगर तेरे को धन मिला है तो ये समाज की उत्पत्ति है, तेरे को पद मिला है तो ये विधान की उत्पत्ति है। और कोई श्रेय उसको मिला है तो उसका कारण अगर विवेक समझा दे तो वो जो अहंकार है वो सही दिशा के ऊपर चला जाता है, वो उसका कारण नहीं होता है। वही व्यक्ति पद का सही उपयोग करता है जब उसे ये मालूम पड़ता है, वही व्यक्ति धन का सही उपयोग करता है जब उसे इस बात का ज्ञान होता है। धन का दुरुपयोग, पद का उपयोग दुरुपयोग होता है, और ज्ञान का दुरुपयोग ज्ञानवान व्यक्ति समाज में इतना कर रहे हैं कि अहंकार जो है उन्हें इतनी चालाकी से करा रहा है कि अज्ञान को मालूम ही नहीं पड़ने देता और अपना स्वार्थ पूरा करता। तो यहाँ पर विवेक को उजागर करना हर व्यक्ति विशेष का पहला, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण हो सकते हैं कि जिस कर्म इंद्रियों को अहंकार पैदा करती है, वापिस वो अहंकार उन कर्म इंद्रियों को बल ना दे सके, इस समय विवेक का कार्य। उसके अंदर शरीरी शक्ति है, अहंकार उत्पन्न, और वो अहंकार अब शरीर को इतनी शक्ति ना दे सके तो वो पतन का कारण में घटे, उसी समय विवेक उसको सही दिशा दे। तो ये विवेक की सजगता से ही मानव उसको विवेक को आहार दे सकता है। अन्यथा अहंकार विवेक को कब खा जाता है, विवेक को भी मालूम होता है। पर इस सब के अंदर सृष्टि नियम के अंदर एक दोष होता है। अहंकार कहीं भी किसी इंद्रिय में पैदा हो सकता है पूरे शरीर में, मगर एक समय के अंदर पूरे शरीर के इंद्रियों में अहंकार पैदा नहीं हो सकता। वो पूरी स्वयं सभी इंद्रियों को एक समय के अंदर वो उनको बल नहीं दे पाता। अर्थात कहीं ना कहीं विवेक का जीवन रहता है। अहंकार कितना भी उत्तम और दृढ़ क्यों ना आ जाए, विवेक हमारे अंदर जीवित रहेगा। बस उसी समय बुद्धि के तल पर हमने अपने विवेक को शक्ति दी।
विवेक अहंकार को ज्ञान दे सकता है, क्योंकि जिस शरीर के अंदर जिस इंद्रिय द्वारा अहंकार उत्पन्न हुआ है, उसी शरीर की उसी इंद्रिय द्वारा ही अहंकार कमजोर हो सकता है। कि तेरी निंदा हो रही है, तेरी आत्मग्लानि हो रही है, और जैसे ही विवेक ऐसे चीज अहंकार को देता है, अहंकार उसी समय कमजोर होना चाहिए। अहंकार जितनी तेजी से बढ़ता है, विवेक अगर सही जगह है तो उतनी जल्दी उसको वापस मिलाने की क्षमता है। उसके अंदर आत्मग्लानि, निंदा, उसको वापस उसको कमजोर करने का कारण बने। और जहाँ पर विवेक कमजोर है, वहाँ अहंकार उसे बल दे कि ये कार्य तू कर सकता, मैं तेरे संग, जिसको हम रिस्क कहते हैं, वो बल उस विवेक को देता है कि कम से कम तेरे को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को क्या होगा। तेरे को विवेक कहता है कि मैं कार्य करने से मुझे नुकसान होगा। अहंकार कहता है क्या हुआ, तेरे में इतना बल है, नुकसान भी तू झेल लेगा, आगे चलेगा। तो ये अहंकार हमारे को उस समय बल देता है। तो इन दोनों के दिशा एक होने से, विपरीत दिशा से, एक दिशा में चलने से, विलय होने से, वो मानव जीवन के अंदर उसको सही दिशा देता है, वो उत्थान ही होता है। और जिस व्यक्ति की अगर हम बायोग्राफी देखें, जिसने जगत के अंदर कुछ ऐसे कार्य करें, वो किसी भी फील्ड के हों, उसके पीछे अहंकार और विवेक का विलय हो निश्चित रूप से हो। मेरे पास ये चीज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है अहंकार की। और विवेक कहता है तेरे पास है, मगर कहीं के बाद तेरे से अधिक है। तो ऐसा विवेक का कहते ही अहंकार वहीं पर रुक जाता है, और वो दुरुपयोग के कारण जाने के लिए वो उसका सदुपयोग करता है। जैसे जैसे हम अहंकार और विवेक का विलय करते जाएं, तो एक समय आएगा जिस प्रकार हम श्वास लेते हुए हमें कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ती, सहज होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन की इंद्रियां जो, कई बार यहाँ कहा गया है 3 दिन कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत है, चौथे दिन और उसके 7 दिन में उसमें मेहनत कम। तो जिस काम को हम 10 दिन कर लेते हैं, फिर उसके 30 दिन आगे करते हैं तो सहज होता है। और जिस कार्य को हम 40 दिन कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारे स्वभाव के अंदर आ जाता है, और जो स्वभाव में स्वयं का भाव बन जाता है तो हमारे उसके ऊपर सजगता हो या हो अपने आप होता है। तो हम अगर इस क्रिया को, अहंकार को समाप्त करने में, अहंकार को निकालने के अंदर अपनी शक्ति नष्ट करने के बजाय अहंकार को विवेक के विलय करने में अगर लगाएंगे, तो हमारे जीवन के अंदर हमेशा ही जब अहंकार उत्पन्न होगा तो विवेक उसको सदय कर देगा, और जब अहंकार विवेक को खाने लगेगा तो विवेक जागृत होगा। ये विवेक जो है सबसे प्रथम अहंकार का, जब भी अहंकार उत्पन्न होगा विवेक को पहले खाना। और जैसे जैसे विवेक बलशाली होता है, अहंकार उसी समय कमजोर होता है। तो हम अपने जीवन के अंदर विवेक और अहंकार विलय करने का कार्य करें। अहंकार का दमन और शमन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसको स्वयं पैदा होने की शक्ति है उसको कोई दूसरा नहीं खत्म कर सकता, वो स्वयं ही स्वयं को खत्म कर सकता। हमने अपने जीवन के अंदर अगर पुरातन इतिहास के अंदर जाएं तो ऐसी कई कथाएं हमें मिलेंगी। वो इतिहास है या इतिहास है, इस बात नहीं है कि बड़े से बड़े दानव हुए, बड़े से बड़े देव हुए, उन्होंने शस्त्र भी उठाए, उनको हमने भगवान का रूप में माना, मगर आज तक अहंकार को खत्म करने की शक्ति उनमें नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति विशेष को तो खत्म कर दिया पर उसका अहंकार नहीं खत्म।
अर्थात जिसके अंदर अहंकार पैदा हो गया वो ईश्वर, प्रभु, परमात्मा जिसको हम कुछ भी कहते हैं, मानते आ रहे हैं, उसमें भी उसको खत्म करने की शक्ति है। तो शक्ति कहाँ पर है? जहाँ पर अहंकार पैदा हुआ है वहाँ पर विवेक के उत्पन्न होते ही अहंकार को कमजोर करके अपनी सही दिशा में ले जाए। अहंकार खत्म नहीं होता, अहंकार की हमें दिशा मिलती है। ये जो प्रकृति की दी हुई प्रचंड शक्ति है, हम इसे महाशक्ति के रूप में अपने जीवन के अंदर अगर लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर कई बार यहाँ पर कहा गया है कि आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जो आपकी रुकावट बने। ये उसी के जीवन के अंदर परिस्थिति रुकावट बनती है जब उसके अंदर विवेक बलशाली हो जाता है और अहंकार कमजोर होता है। मगर जहाँ पर अहंकार बलशाली है और विवेक में मिले हैं तो बड़ी से बड़ी उस व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर कोई सी भी कष्ट आए हैं वो साधारणतः उसको लेके चलते हैं। एक खिलाड़ी है, जब उसके अंदर प्रतिस्पर्धा आती है, मैं जीत के दिखाऊंगा, ये अहंकार है उसको, उतना बल बढ़ता है। वही खिलाड़ी, उसको थकावट नहीं होती, उसको धूप की गर्मी नहीं लगती और वो मैदान के अंदर खेल सकता। और जहाँ पर उसी को विवेक बलशाली हो जाता है कि तू बीमार हो जाएगा, तो क्या करेगा, तो उसके अंदर कमजोरी आ जाती है, बीमार। तो ये मानव को बुद्धि के द्वारा इन दोनों को कितनी मात्रा में आपस में चाहिए ये विलय करता सिर्फ मानव सजगता से ही उसको ले सकता है, सजगता जहाँ नहीं है। इसी कारण बुद्धि द्वारा जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, उसी बुद्धि द्वारा अहंकार उसी बुद्धि द्वारा गलत काम कराता है और बुद्धि अपने ज्ञान की वजह से विवेक से भी कमजोर वाले काम कराता है। अर्थात बुद्धि दोनों को अलग अलग जब कार्य करती है तो दोनों मानव के हित के लिए उसका हित करती है। और जहाँ पर विलय हो जाएगा अहंकार और विवेक का, तो बुद्धि का कार्य निश्चित रूप से सकारात्मक होगा और उसके पतन की जगह उसका उत्थान करता होगा। और जगत के अंदर जब भी कोई नई दिशा मिली है, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों द्वारा मिली है जिनके अंदर अहंकार और विवेक का विलय, जिसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का महत्व खत्म कर दिया, जल बन गया है। विलय ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक वो नई दिशा जो है शक्ति नहीं पाएगी। यहाँ कभी विवेक हावी हो गया, कहीं अहंकार हावी हो जाएगा तो वो बराबर नहीं होगा। हमें विवेक और अहंकार से मिलकर एक नई शक्ति बनानी है और कुछ समय जब हम इस पर निश्चित रूप से चलते रहेंगे तो हमारे स्वभाव के अंदर आ जाएगी और हम जो स्वभाव होगी हमारा जीवन हो जाएगा। हमारा जीवन जो करता है इसको सहज स्वभाव के नाम से होता है कि हमें खुद का ज्ञान नहीं होता, हमसे कार्य होता है जिसको हम आदत कहते हैं। और किसी चीज को आदत कब बनी है, जब उसको लगातार कुछ समय करते हैं। हम जीवन से जैसे जैसे हुए, जो आहार हम खाते आए, आज हम स्वाभाविक रूप से खा रहे हैं और कितनी बार खा लिया हमें नहीं मालूम, पर जब वो आहार बदल जाता है तो हम 1 या 2 दिन में उछल के उसको वापस उसी स्वभाव वाले आहार में आते हैं। पर जब उसी आहार को जो दूसरा आहार है कुछ समय लेना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे अंदर की इंद्रियां उसे प्राप्त करने के लिए हमें उकसाती हैं और हमारे लिए वो ग्रहण होती है। वो भी स्वाभाविक रूप से हमारे को अच्छा लगने लगता है और जो हमारे को निंदनीय था हमारे लिए वांछनीय था। तो ये मानव अपने शरीर के बारे में जब इस ज्ञान को लेगा, जैसे श्वास की बात हुई है, ये सारी क्रियाएं उसको सजगता के लिए श्वास के कारण ही मिल सकती है। श्वास जब तक उसके हैं तो मानव, श्वास को मानव रोक नहीं सकता, थोड़े समय के लिए उसको अपने अनुसार प्रयोग में ला सकता है। और विचार को चाहे तो बदल सकता है, विचार को चाहे रोक सकता है। तो ये विचार जो है सजगता से आएंगे और सजगता उसके श्वास लेने की क्रिया से ही आ सकती है। और जैसे जैसे उसके श्वास की लेने की क्रिया आती रहेगी उसके जीवन के अंदर सजगता आती रहेगी और सजगता आते आते ही वो विवेक और अहंकार का विलय करके एक नई दिशा
जिसके अंदर अति गुण हो, जो दायित्व कृत्रिम से कृत्रिम कार्य का लेने के से इतनी आराम से निकल जाता है कि ये सही है, उसे सही दे देता है, और अच्छे से अच्छे कार्य का किसी से भी कारण से हुआ दूसरे को श्रेय नहीं लेने देता। इतनी वाली शक्तिशाली अगर हमने जीवन के अंदर उसकी सही पहचान कर ली तो हम हर एक कार्य को श्रेय के रूप में लेंगे, श्रेय वाला करेंगे, पर श्रेय लेंगे नहीं। श्रेय नहीं लेना ये विवेक हमें सिखाएगा कि ये मेरा कर्तव्य हो गया। जब कर्तव्य विवेक सिखाता है तो अहंकार को कर्तव्य रूपी बल ऐसा मिलता है कि उस समय उसके अंदर थकावट भी नहीं आती, उसके अंदर उसको किसी क्रोध भी नहीं आता, उसके अंदर कोई निंदनीय विचार भी दे जाए तो उसको सुनने अनसुनने का नहीं, उसके पीछे कारण से है। ये विवेक ने उसे कर्तव्य का बोध कराया। हम बोध शब्द को अगर थोड़ा सा ध्यान दें, एक बच्चे को अबोध बोला जाता है। अबोध यानी उसका विलोम क्या है, इसे बोध नहीं। तो क्या हम अपने जीवन में अभी तक अबोध हैं? ये हमें बोध नहीं। वो अबोध सिर्फ क्रिया करता है, खेल में रहता है। वो प्लेन उड़ाना चाहता है मगर अबोध बालक को खिलौना दिया जाता है। तो प्लेन जैसी दिखने वाली चीज को खेल के अपने जीवन को उस समय पास कर लें। तो क्या हमने अपने जीवन को अभी तक अबोध की तरह बोध नहीं? बोध होते ही बच्चा उसको छोड़ देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जिस चीज का बोध होता है उसको अपनाने की कोशिश करता है। आज हमें अपने आप में ये प्रश्न हमें क्या बोध होते ही हम अबोध से बोध में आ गए, यानी बालक से युवा में। और युवा शक्ति तो मानव जीवन में सबसे बलशाली होती है। उस शक्ति के अंदर जोश की जगह होश आ जाए बुद्धि द्वारा तो उसकी दिशा कितनी सही हो जाती है। और वही शक्ति जब जोश करती है तो ये निर्णय नहीं ले पाती तो सही हो जाती है। तो बुद्धि विवेक द्वारा ही देती है। तो हमें ये समझ आया कि विवेक और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरह है। हमने इसका विलय अपने किसी क्रिया द्वारा करना है और हाइड्रोजन रूपी शक्ति हमने निकालनी है। जो सही उपयोग हो तो उत्थान करती है, दुरुपयोग हो तो क्या पतन हो सकता है हाइड्रोजन का। हम इस बात से जगत सारा है। तो ये हमें अपनी शक्ति को, ये ज्ञान का बोध जो हुआ है, अहंकार हमारा नकारात्मक नहीं है, ये प्रचंड शक्ति है प्रकृति द्वारा दी हुई। हमें इसका सही उपयोग, जैसे जैसे उपयोग हम करना शुरू कर देंगे विवेक, तो हमारे जीवन के अंदर जब लाभकारी चीजें मिलती जाए, हम आज के बाद देखेंगे कि इसे करते हमारे जीवन के कई कार्य जिसकी रुकावट सिर्फ विवेक था या जिसकी रुकावट अहंकार था, वो दोनों के विलय होने से हमारे कार्य से बचे। इस व्यक्ति विशेष से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसको बोलना है तो अहंकार कहता है। तो उसके साथ जो कार्य है वो विवेक उसको देगा कि यार वो नहीं बोलता, तू बोल। तो ये उसी समय उसका कार्य जो रुके हुए दोनों पक्षों को उत्थान की ओर ले जाएगा। तो उसके कार्य होते। और आज हम अपने जीवन के अंदर पीछे मुड़े देखेंगे, अधिकतर कार्य या तो हमें विवेक ने रोके, हमारे अंदर डर पैदा कर रखे, या हमें अहंकार ने रोके। जब जब ये दोनों अकेले कार्य करते हैं तो मानव का विकास होता है और ये विनाश ही करते हैं। विवेक ने जितना विकास की जगह विनाश किया मानव का, अहंकार ने नहीं। अहंकार का विनाश दिखाई देता है, विवेक का विनाश हमें अनुभव नहीं।
तो जहाँ जहाँ हम विवेक और अहंकार को मिला के विलय करके एक नया शक्ति उत्पन्न करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर सभी कार्य सहज रूपी होने चाहिए। यहाँ पर जो बातें कही वो स्वयं जीवन के अनुभव के द्वारा ही कही, और कभी कुछ ऐसी बातें जब कही गई हैं तो किसी के ऊपर प्रयोग करने के पश्चात कही गई। तो ऐसी तक अभी तक कोई ऐसी बात ना कही गई है ना कही जाएगी जिसका उससे पहले स्वयं अनुभव किसी द्वारा करा या स्वयं के अनुभव के द्वारा नहीं करा। ये अपने जीवन काल के अंदर ये चीज़ें करी हैं। यही कारण है कि व्यापार भी कर सकता हूँ, परिवार भी चला सकता हूँ, संसार के अंदर हर वो विषय है उसका सेवन भी कर सकता हूँ जो मुझ पे कभी भी कोई प्रकाश नहीं डालता जी। वो मेरे, क्योंकि मैंने जब जिसका इस्तेमाल करा, जब ये मानस हो गया मालिक बन के करा है, तो मालिक हमेशा मालिकानापन जिसका रहेगा, सम्राट जो रहेगा, उसको कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। पर जब हम किसी और को मालिक बना लेते, हम अपने विशेष इंद्रिय को वो मालिक बना लेते हैं अहंकार के अंदर या विवेक के ज़्यादा बल से। इसी कारण इतिहास जगत के अंदर हमने जिनको देव बोला है, उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसा जीवन काल में उन्हें कुछ नहीं मिला, बाकी ब्रह्म वो में वो बहुत कुछ मिला। जिसने अहंकार किया है उसने अपने बल के रहते हुए कुछ कर सकता था, उसको मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि अहंकार जब उत्तम पैदा होता है अकेला, तो जिसके अंदर पैदा होता है उसका विनाश कर देता है, खुद विनाश नहीं। तो जब विवेक इस बात का उसे ज्ञान देगा तो अहंकार कभी भी इतना बलशाली नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति विशेष का उसको जिसको हम कहते हैं चला लेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ अग्रसर भी करेगा और समाज के अंदर उसको एक प्रतिष्ठा के रूप में ही देगा। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि अहंकार की शक्ति जिसको हम नकारात्मक मान रहे थे और विवेक की शक्ति जिसको हम सकारात्मक मान रहे थे, ये दोनों कब हमारा विकास करती हैं और कब हमारा विनाश करती हैं। जब हमें सरिता से अनुभव होगा तो हम हमेशा ही इनको मिल के चलाने का चेष्टा करते रहेंगे और हमारा जीवन हमेशा ही आनंदमय ही रह सकता, आनंद के साथ ही रहेगा। आनंद का शब्द क्या है कि मेरे अंदर हमेशा ही एक शांति का अनुभव। जिस समय ये जो हमें बताई गई है श्वास की क्रिया, जब इसका रोजमर्रा करने से हमें मालूम पड़ेगा कि जब भी अहंकार पैदा हुआ है तो मेरी कोई इंद्रिय उसी समय, एक इंद्रिय उसको पैदा कर रही है और दूसरी इंद्रिय सजग कर रही है विवेक को कि तेरी शांति कम हो रही है, और उसी समय मेरी इंद्रिय ही मुझे ज्ञान दे देती है, बोध दे देती है, तो मैं अपनी बुद्धि द्वारा उसको विवेक को बल दे दूँगा और अहंकार को उतना ही उत्पन्न कर सकता, उतना ही बढ़ाने की चेष्टा करूँगा और वहाँ तक सीमा के अंदर रहे जो मेरे जीवन को करे। तो ये मेरी इंद्रिय द्वारा ही बनता है और अहंकार मेरे किसी इंद्रिय विशेष को इतनी शक्तिशाली ना बनाए कि मैं अपने जीवन के इस इंद्रिय का गुलाम हूँ। जितने लोगों ने भी नशा किया अहंकार द्वारा है, अरे मुझे कुछ नहीं होगा मैं कर, ये उसके अंदर अहंकार ने पैदा किया, पर उसको लगातार अहंकार कराता रहा तो वो इंद्रिय उस व्यक्ति विशेष की मालिक बन गई और उससे वो कराना चाहिए, जिसको हम एडिक्शन के नाम से कहते हैं। चाहे वो खिलाड़ी हुआ, चाहे किसी भी सेवन से उसका नशा लिया गया, पढ़ना भी एक एडिक्शन हो जाती है, गाना भी एक एडिक्शन हो जाती है, जब वो एक सीमा से बढ़कर व्यक्ति विशेष को ना मालूम पड़े करता है। तो ये क्या करता है, शुरुआत तो अहंकार से हुई या विवेक से हुई, मगर अहंकार ने विवेक को जहाँ जहाँ खा लिया, हमारी इंद्रिय अहंकार के पक्ष देने शुरू हुई, तो हमारे को श्वास की क्रिया द्वारा ही इसका ज्ञान मिल सकता है।
जो जो क्रियाएं बताई गई हैं, अगर हम उसको रेडी करेंगे तो हमारे अंदर कब कैसे अहंकार उत्पन्न हुआ है और कब हमें विवेक कमज़ोर कर रहा है कि यार इस विवेक ने मुझे कह दिया, मेरे अंदर डर और भय दे दिया, मैं जिस कार्य को करना था उसको मैंने, इसको हम कहते हैं पोस्टपोन कर दिया। अहंकार उसी समय हो सकेगा तो कर अभी, तो हमने अपने जीवन के अंदर कार्य के अंदर देखेंगे कि जब जब हमने अहंकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए और कभी कभी हमने विवेक द्वारा मान करें तो हमने उसमें भी कमजोरी पाई है, नुकसान पाया है। अहंकार ने हमारे को कितना बल और हमारे जीवन के अंदर कितना श्रेष्ठतम कार्य कराए हैं, ये अहंकार द्वारा। तो अहंकार हमारे जीवन की एक ऐसी प्रचंड शक्ति है जिसको हमें उपयोग करना आना चाहिए और उपयोग का माध्यम विवेक द्वारा ही। और जो नकारात्मक होते हुए विपरीत दिशा है, ये विलोम है, इनका विलय करने के लिए बुद्धि को सजग रखता है और बुद्धि द्वारा किया जा सकता है और बुद्धि को बल देता है विचार। और जो हमें आज विचार मिला है, हमें ये देखना है कि हमारे जीवन के लिए जो अहंकार जिसको आज तक नकारात्मक मानते थे, ये हम उसको सकारात्मक रूप में लेकर हम अपने जीवन को कैसे लेंगे, ये हम आने वाले समय में स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और हमारे जीवन में जिस कार्य से हम जो मकसद है, जो हमारा अभिप्राय है, आनंद अनंत और आनंद ही रहेगा। और जब जब हमारे जीवन में आनंद आनंद रहेगा तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी आनंद और आनंद ही दे पाएंगे। हम फूल बनेंगे तो खुशबू भी दे सकता है, हम जो है महत्व देंगे, खुशबू भी देंगे, आनंद किसी देता है जी। तो हमारे जीवन में भी सदा आनंद। पुराने ज़माने में सुनते आ रहे हैं कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नकारात्मक चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो इसका हम ये समझें कि उस समय हमें इतना बोध नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि हम उसको सकारात्मक तरीके से यूज कर सकें। इसी प्रश्न का बार बार एक बात कही जाती है कि जब भी हम प्रश्न करें तो प्रश्न करने से पहले स्वयं से जरूर प्रश्न करें। जब हम स्वयं से प्रश्न करेंगे तो हम देखेंगे हमारे उत्तर हमारे पास ही हमें मिल चुका है या हमारे नहीं, वो मैं समझ गया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं था। ये बात ज्ञान दिया नहीं जा सकता था, मानव में प्रगति नहीं हुई। जिन जिनों को ज्ञान दिया गया वो एक तरीके से बहुत बड़े अज्ञानी भी थे। कि हम इसके साथ अगर देखेंगे हम इतिहास जगत के अंदर आज से 40 साल पीछे चले गए, सैकड़ों साल पीछे, 50 साल पीछे चले, 500, 1000, 5000 साल की बात, तो हम देखते हैं कि वैद्य जी बड़े हकीम जी बड़े अच्छे थे, चले गए, वो शिक्षा ज्ञान खुद ही ले चले। उसके बाद उन अन्य जनरेशन को नहीं, क्योंकि ये अज्ञान था, ऐसा नहीं था ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कैसे बांटना या देना से लाभदायक मानव जगत के लोग हैं, ये इसका अज्ञान था। तो उन्होंने क्या करा कि जो मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली चीजें थी, मगर ये सीमा के अंदर रहती हैं, तो शक्ति जैसे सीमा से बाहर होती हैं तो उस मानव का हित करती है। तो उन्हें इनने को विकार कह दिया कि जब ये सबसे बड़े सकार, मगर ये सकारात्मक तब तक है जब सीमा में। तो इस बात का ज्ञान देने से उन्होंने इन्हीं से परहेज कर दिया कि आदमी परहेज करता रहेगा तो सीमा में रहेगा, क्योंकि ये उसके अंदर विकास तो करेंगे, दूर तो जा नहीं सकते। तो सिर्फ एक नेगेटिव अप्रोच देकर हमें ज्ञान ना देने का, हमें रोकने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि जो हमारे जीवन के अंदर काम सबसे उत्तम थी, काम से ऊंची उपासना नहीं, मगर उसको वासना में ले गया। कभी जब आने वाले समय में काम पर विषय पर बोला जाएगा तो काम कितना जीवन के अंदर उपासना है, उसके बदले जब ज्ञान मिलेगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये विकार नहीं है, ये मानव जीवन के सबसे बड़े सकार हैं। ये कब विकार रूप ले लेते हैं मानव को मालूम नहीं पड़ता, इसलिए सजग।
तो हमारे को उन्होंने बचाने के कारण कोई विधि नहीं थी, कोई ऐसे मानव जगत के अंदर प्रगति का कोई ऐसे बात नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि सीमित दायरे, जैसे हमने अंधविश्वास के अंदर देखा कि बहुत कुछ उसी को अंधविश्वास माना गया, उसी पीछे कारण यही था। ऐसा नहीं था कि मानव को बोध नहीं था, मगर वो बोध मानव जगत तक प्रचलित नहीं हो सकता, क्योंकि एक अज्ञानतावश जिसको बोध हुआ है उसने अपने स्वयं के लिए, उसने स्वयं के अर्थ पहचान लिए और स्वार्थीपन दे दिया अपने आप को। जबकि स्वार्थी जो है स्वयं के अर्थ पहचानने के बाद मैं मानव जगत को दूं, ऐसा अर्थ उसने नहीं समझा। तो पुरातन समय के जमाने में उसने इसको स्वार्थ के नाम दे दिया, स्वयं के अर्थ पहचानने के बजाय स्वयं तक रखा, इतना स्वार्थी हो गया। इसलिए जो स्वार्थी शब्द का भी दुरुपयोग हो रहा है, स्वयं के अर्थ पहचानने के बजाय हम दूसरे की चीज को स्वयं का बनाने में स्वार्थपन पूरा करते हैं, जबकि वो मेरे पास है, हम अपने स्वयं के अंदर उजागर करने के जगह हम दूसरे को अपना बनाने में स्वार्थीपन करते हैं। स्वार्थी शब्द के भी ऐसे अर्थ जो है अनर्थमत हैं। तो ऐसे हम आने वाले समय में उपयोग करते हैं, एक एक चीज जो है जैसे जैसे हम क्लासिक करते हैं तो एक एक शब्द का एक एक चीज करता है, तो बार बार ये कहता है कि शब्द का प्रयोग करो, इस्तेमाल नहीं, जैसे जैसे हम प्रयोग करना शुरू करते हैं। और कोई प्रश्न? यहीं पे सुना भी करता हूँ कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो मन है, कि मनुष्य अगर मन पे वो करता है, मन जो चाहे मनुष्य वो कर सकता है, अगर मन उसका स्वभाव है। और अगर मन वीक हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, तो मनुष्य चाहते हुए कुछ नहीं कर पाता। तो इसमें अब जब ये होता है कि ये जो अहंकार इतनी बड़ी शक्ति है, क्या वो मन से बड़ी शक्ति है या मन का कुछ भेद है? मैंने अभी ये कहा है कि बहुत शक्तियों के अंदर, मानव के जीवन के अंदर अहंकार भी एक प्रचंड शक्ति है। ये कहा अहंकार एक अकेली शक्ति नहीं है। प्रश्न आया है कि मन भी एक शक्ति है, बोलना भी एक शक्ति है, जैसे अभी कहा, सुनना भी एक शक्ति है, देखना भी एक शक्ति है, स्पर्श भी एक शक्ति है, मन भी एक शक्ति है। मगर जब हम मन के ऊपर समझने में आएंगे तो मन का निर्माण व्यक्ति विशेष करता है, मगर अहंकार स्वयं बनता है। तो जो स्वयं बनता है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। मन का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, और जिसका निर्माण मनुष्य किया जाता है उस पर सहज विजय पाना आसान है। जब हम मन के विषय में जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि मन की शक्ति का कैसे कैसे उपयोग करें और मन का कैसे विकास होता है, कैसे निर्माण व्यक्ति विशेष करता है। जब हमें इस ज्ञान का पता लगेगा तो ये चीज़ें जो है हमें आने वाले समय में ज्ञान। मगर जो इस बात को जो प्रश्न है कि जो स्वयं को पैदा करता है, स्वयं से प्रश्न करें वो शक्तिशाली कितना होगा, और जिसको कोई पैदा कर रहा है वो कितना शक्तिशाली होगा, निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। तो मैं सब और कोई प्रश्न? जैसा कि आने वाले समय के बारे में ज्ञान मिलता रहा है, जैसे भी क्लास शुरू होने से पहले बताया गया, तो जिस हिसाब से कुछ जो लोगों का इमोशन और जो दिखाई दे रहा है उससे बल मिलते हुए कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, और जो कार्य एक सबसे उत्तम कार्य जो शुरू करने जा रहे हैं, जो बताना भूल कि जो भी 8-10 व्यक्ति जो पूरी तरह हैं उनको हम शिष्य से शिक्षक के ऊपर लेके जाएंगे। तो आने वाली क्लास के जो अगले महीने आना, इनमें से जो भी अपने आप को शिष्य से शिक्षक रूप के अंदर आए तो अपना नाम लिखा दें और अपना विषय बता दें कि उससे अगर उसको कुछ पूछना है उस विषय के बारे में ज्ञान देते, अगली बार वो खुद भी यहाँ पर खड़े होकर कुछ अपने आप को लिख सके।
ये सबसे जो अगली बार आता है कि जो चाहें, जो उन्हें प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि सभी को दीदेवार बनना है। तो शुरुआत करने में जो भी अपने आप को प्रेरित करते हैं तो अपना नाम लिखाए और सब्जेक्ट बता दे, उसको जो चाहिए वो कभी भी आकर उसमें अपने ज्ञान वृद्धि करके अगली बार आने ये आप अपनी